अ, सबसे पहले जो टॉपिक हमने किया था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था और फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल भी किया। the motion of mass attached to a spring is simple harmonic. आज जो हमारा टॉपिक है ये दूसरा एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि सिंपल पेंडुलम। वी आर टू शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। फॉर दिस इफ वी show that A is proportional to -x, if we can show that A is proportional to -x, so this is the necessary and sufficient condition for a vibratory motion to be simple harmonic. What is simple pendulum? Simple pendulum is an idealized setup which consists of a string which is inextensible. Inextensible means the length of the string is constant, and a mass which is attached to the lower end of the string and the upper end of the string is attached to a frictionless support. ये बात ध्यान में रखिए, frictionless support. If we displace the bob of the pendulum from its mean position toward extreme position, let these two positions, this is A dash, this is O, A dash or A. These A and A dash both are called extreme position and O is called the mean position. The mean position, the bob is initially at rest at the mean position. If we displace it from this mean position toward extreme position A and release, then the pendulum starts oscillation. Now we are to discuss that why the pendulum starts oscillating. Here, in this position, two forces are acting on the bob of the pendulum. One is the weight, which is always acting in the downward direction, and the tension in the string, which is acting in the upward direction. And these two forces cancel the effect of each other, so there is no motion along the string. When we displace this bob from its mean position toward extreme position A, the weight which is acting downward, always acting downward, there is no motion along the weight, along the direction of weight. And the motion is toward the mean position. From here, if we release, the motion is toward the mean position. इसका मतलब ये है कि अगर ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो इसमें कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि मीन पोजीशन की तरफ है। तो यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स है नहीं, सिर्फ वेट है। तो हम इस वेट को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज w cos थीटा and one is the vertical component which is w sin theta. ये हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं क्लास 9 चैप्टर 4 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. अब यहाँ पर ये जो w sin थीटा है, w cos थीटा है, अब यहाँ पर देखिए जरा w cos थीटा इस डायरेक्शन में है और टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो टेंशन एंड w cos theta cancel the effect of each other and there is no net force along this direction, along the string. The only component which is w sin theta is the component which is responsible for the motion of the pendulum toward the mean position, which is w sin theta. So w sin theta is called the restoring force. If the restoring force is equal to minus w sin theta, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया. ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 है. लेकिन हमें पता है कि F is equal to ma by second law of motion
तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। देखिए ये जो अप्लाइड फोर्स है ये और ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रॉम द मीन टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम की तरफ है। तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर हम put a negative sign over here which shows that these two forces are in opposite direction. So F is equal to F restored या F is equal to इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर आपके पास आ जाएगा MA is equal to minus W is equal to what? MG sin T कंपेयरिंग 180। अब यहां पर अगर मैं इधर आ जाऊं, x को इधर करते हैं डिवाइड बाय m बोथ द साइड, ये m के साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो a is equal to minus g sin theta, माइनस g sin theta। अब इधर आ जाएगा, यहां इसकी जो मोशन है वो इस तरह है, मतलब ये इस तरह ऑसिलेशन कर रहा है। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर ये एंगल थीटा है फॉर स्मॉल एंगल थीटा, दिस डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। अगर ये लेंथ ऑफ द आर्क जो है हम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर लेते हैं तो इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है और आप sin थीटा अप्लाई करें तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज which is equal to sin theta is equal to x divided by l। यहां पर अगर हम x इस sin theta की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करें, पुट sin theta is equal to x divided by l in 3, इसको 3 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा a is equal to minus gx divided by l या a is equal to minus g divided by l into x, या g जो है आपके पास कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में डिवाइड करें तो आपके पास कांस्टेंट ही आएगा, तो a is equal to minus constant into x। या from mathematics we know that a is proportional to minus x। अगर इस कांस्टेंट को हम हटा दें, कांस्टेंट को हटा दें तो a is proportional to minus x, and this is the necessary and sufficient condition जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि if we can show that a is proportional to minus x, then we have shown that the motion of the mass attached to the motion of simple pendulum is simple harmonic। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ मैं जब इसको डिस्प्लेस करूं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम है, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स भी 0। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। If the velocity is 0, then the kinetic energy will also be equal to 0. So here kinetic energy is 0, potential energy is maximum. Here kinetic energy is maximum because the velocity of the bob of the pendulum at mean position is maximum. Velocity maximum है तो kinetic energy maximum है और potential energy क्या है? 0। तो देखिए यहाँ at mean position acceleration is 0, displacement is 0, restoring force is 0, potential energy is 0, only velocity and kinetic energy are maximum। Here kinetic energy and velocity are 0 and all the other factors are maximum। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की तरफ। अभी हमने जो कांस्टेंट लिया है
स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g divided by L. From here, g divided by L. And we also know that from simple harmonic motion that omega square is equal to 2 pi square divided by t square. आप इसको इक्वेशन 1 का नाम कर दें, इसको 2 का नाम कर दें, दोनों को कंपेयर करें तो g 2 pi square divided by t square is equal to g divided by L. और बोथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो g t square is equal to 4 pi square L. बोथ साइड अगर आप g से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा t square is equal to 4 pi square L divided by g. स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड्स तो t is equal to इस ये 4 pi स्क्वायर है तो जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 pi आ जाएगा अंडर रूट n डिवाइडेड बाय g. और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के लिए कंसीडर करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t या f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 pi अंडर रूट n डिवाइडेड बाय g. या इसको आप ऊपर ले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा f is equal to 1 divided by 2 pi under root g divided by n. So this is the expression for the frequency of the simple pendulum and this is the expression for the time period of simple pendulum. अगर आपको लेंथ केवल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो आप टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं. तो ये था दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक में एक है शॉक एब्जॉर्बर. तो शॉक एब्जॉर्बर के लिए हम पहले डिफाइन करते हैं डैम्पिंग. व्हाट इज डैम्पिंग? Damping is the vibratory motion in which the amplitude of vibration decreases with time. अगर टाइम के साथ साथ टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो इस टाइप के मोशन को, इस टाइप के वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग. Damping is the if the vibration, the amplitude of the vibration decreases with time, that type of motion is called damping. अब यहाँ पर आप देखिए damping का एग्जांपल क्या है? अगर आप एक स्प्रिंग ले, स्प्रिंग वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जानते हैं जिसमें बच्चों को हम वाइब्रेट करते हैं. अगर आप एक वाइब्रेटिंग स्प्रिंग ले लें और उसको हम डिस्प्लेस करें फ्रॉम द मेन पोजीशन और यहाँ से हम उसको छोड़ दें तो वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करेगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो रुक जाता है. इसका मतलब ये है कि पहले वो इस ऑसिलेशन के साथ वाइब्रेट करता है और इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है और एक वक्त इस तरह आ जाता है कि वो रुक जाता है. तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं. इसको हम डैम्पिंग कहते हैं. इसका एक एग्जांपल है शॉक एब्जॉर्बर. शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी के टायर के ऊपर जो शॉक लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं कि अगर कोई जंप है और उस पे आप गाड़ी को गुजारते हैं तो उसमें वो आपको झटका नहीं लगेगा. रीजन उसका क्या है कि उस शॉक एब्जॉर्बर में के अंदर एक पिस्टन लगा होता है और उस पिस्टन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और इसके बाहर एक स्प्रिंग लगा होता है. तो जब आप जंप के ऊपर से गुजरते हैं तो जंप पे ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल होता है. तो ये लुब्रिकेंट ऑयल इन सुराख की मदद से ऊपर जाते हैं और फिर इस स्प्रिंग में स्टोरिंग फोर्स जब स्टोर हो जाता है तो ये इसको वापस अपनी पोजीशन की तरफ ले आता है. जब ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ आता है तो ये
दिमाग की मदद से आहिस्ता आहिस्ता वो लुब्रिकेंट नीचे आते हैं और ये गार्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है. So this is all about simple harmonic motion and example of simple harmonic motion which is simple pendulum. Wish you best of luck.